Hello students, today we will discuss about the spherical mirror resonators and the mode selection techniques. In last lecture we have discussed the modes of oscillation and we have derived the formula for the modes of oscillation. Okay, so that was in the case of flat mirror resonator. So if we were using the flat mirror resonator, that is the active medium is surrounded by the flat mirrors, and we were getting the longitudinal mode. So longitudinal mode was the modes along this axis, that is cavity axis. So modes along the cavity axis were taken as to be the longitudinal modes, while the modes lying in the plane perpendicular to this axis are called the transverse modes. So suppose we had considered the rectangular cavity of dimension A, B and C, 2A, 2B and C, I think, and these were on the axis X, Y and Z axis. Okay, so the X and Y, Z axis was the along the cavity axis, and the X and Y axis are the perpendicular axis of the cavity axis. So this is X axis and this is Y axis. So now the transverse modes are obtained in these directions, X and Y axis direction. Okay, so spherical mirror resonators. What is spherical mirror resonators? When we use the spherical mirrors instead of the flat surface mirrors, then these are called the spherical mirror resonators. Okay, and this is confocal concave mirrors. Confocal concave mirrors. So confocal concave mirrors के बारे में अब हम पढ़ेंगे. तो spherical mirror resonators जो हैं, these are the open resonators consisting of two plane mirrors. सॉरी, ये जो ओपन रेजोनेटर है, ओपन रेजोनेटर हमने पिछले उसमें पढ़ा था, पिछले लेक्चर में. सो एन ओपन रेजोनेटर कंसिस्टिंग ऑफ two plane mirrors facing each other, in principle the same as a Fabry-Perot interferometer of an or an etalon. ठीक है. So this open resonator consisting of two plane mirrors facing each other, and it was in principle as same as the Fabry-Perot interferometer of an etalon or an etalon बोलते हैं जिसको. ठीक है. So the difference in respect of the geometrical dimensions is that in a Fabry-Perot interferometer, the spacing between the mirrors is very small compared to the transverse dimensions. So जो transverse dimension है, that is x और y directions में जो dimension है, उनके comparison में जो Fabry-Perot interferometer है, इसकी spacing जो है mirrors की वो बहुत बहुत छोटी है. ठीक है, यानी कि जो हम लेंथ बोल रहे थे कैविटी की, वो इसकी विड्थ के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम है. ओके, जबकि ऑप्टिकल रेजोनेटर में क्या है
कि जो लेंथ है कैविटी की, दैट इज वी वर कंसिडरिंग आई थिंक डी was the D, yes D, okay, so D was the width of the rectangular cavity, ठीक है। तो ये जो D है width, वो लेंथ और जो ये ट्रांसवर्स जो डायरेक्शन है, यानी कि एक्स वाई डायरेक्शन में जो ये जो लेंथ होगी, ठीक है, इनके कंपैरिजन में ये जो डी था ये ज़्यादा था ऑप्टिकल रेजोनेटर के केस में, लेकिन फैब्री पेरोट के केस में ये उल्टा है, ओके। सो पेयर ऑफ कर्व मिरर्स इंस्टेड ऑफ प्लेन मिरर्स कैन ऑल्सो फॉर्म एन ऑप्टिकल कैविटी। तो हम अब प्लेन मिरर्स की जगह पे क्या ले सकते हैं, कर्व मिरर्स ले सकते हैं। प्लेन मिरर्स में क्या था कि प्लेन मिरर्स जब हम ले रहे थे तो प्लेन मिरर्स में जो फोटॉन्स एक्टिव मीडियम के थ्रू फोटॉन्स क्या कर रहे थे, यहाँ इस तरीके से क्या कर रहे थे, राउंड ट्रिप लगा रहे थे इस मिरर पे टकरा के, फिर वापस यहाँ इस मिरर पे टकरा के, फिर वहाँ से वापस एंड रिफ्लेक्टिंग एंड हिट बैक, रिफ्लेक्टिंग एंड हिट बैक, ओके। तो इस तरीके से एक राउंड ट्रिप लगा रहे थे। और जो स्पॉन्टेनियस एमिटेड जो फोटॉन्स थे, वो क्योंकि वो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं तो वो क्या हो रहे थे, एस्केप कर रहे थे इस कैविटी को, ठीक है। बट जो कर्व मिरर है, इनके केस में, कर्व मिरर के केस में जो फोटॉन्स हैं, जो स्पॉन्टेनियस इमिटेड जो फोटॉन है, उनकी एस्केप करने की जो चांसेस हैं, इस कैविटी को एस्केप करने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। ये हम अभी देखेंगे कैसे। So depending on the curvature of mirrors and spacing between them, curvature of the mirrors और इनके बीच की जो स्पेसिंग है, इसके आधार पे रेजोनेटर्स स्टेबल एंड अनस्टेबल टू टाइप्स के फॉर्म हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। तो रेजोनेटर्स स्टेबल भी हो सकते हैं, अनस्टेबल भी हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर्स एंड स्पेसिंग बिटवीन दैम, यानी कि मिरर्स के बीच की जो स्पेसिंग है और इनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम कहते हैं कैपिटल आर से शो करते हैं, ओके। सो ऑन दैट बेसिस वी कैन क्लासिफाइड these resonators into two categories. First is stable and another is unstable, okay। So in stable resonators, the field distribution can keep bouncing back and forth between the mirrors without much loss due to the finite size of the mirrors. So stable mirrors में क्या होता है, क्योंकि जो स्टेबल रेजोनेटर्स में क्या होता है कि मिरर्स का जो है वो फाइनाइट साइज होता है, जिसके कारण कि वो क्या करते हैं, इसके कैविटी के अंदर ऑसिलेट करते हैं फोटॉन्स, ठीक है, जिसके कारण फाइनाइट साइज होने के कारण मिरर्स का जो फोटॉन्स हैं वो ऑसिलेट करेंगे कैविटी के अंदर, और ज़्यादा लॉस नहीं होगा फोटॉन्स का, ओके। तो हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी लेज़र बीम की वो ज़्यादा मिलेगी। बट इन अदर साइड, इन अनस्टेबल रेजोनेटर्स में अगर हम देखें तो अनस्टेबल रेजोनेटर्स में द फील्ड escapes फ्रॉम द साइड्स ऑफ द मिरर एंड इज़ नॉट वेल कन्फाइंड टू द कैविटी। तो जो फील्ड जो है escape कर जाता है, यानी कि जो फोटॉन्स हैं वो escape कर जाते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द मिरर्स, because these are not well defined size, and there is not well defined size, and the unstable mirrors they are, so it is not well defined to the cavity. So thus the diffraction losses in resonators formed by curved mirrors can be much smaller. So हम ये देख सकते हैं कि जो रेजोनेटर्स हैं वो जो कर्व मिरर से रेजोनेटर्स बनाए जा रहे हैं, कर्व मिरर से रेजोनेटर्स यानी कि कर्व सरफेस की जो अगर हम मिरर्स को लगा लें, तो जहाँ पे हम फ्लैट मिरर्स का यूज़ कर रहे थे, अब कर्व मिरर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो जो डिफ्रैक्शन हो रहा था फोटॉन्स का, ठीक है, और जो हम कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन लॉस, क्योंकि फ्लैट मिरर में हम कह रहे थे कि अगर
जो फोटोन जो हैं वो अगर जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं तो वो तो रिफ्लेक्ट बैक होंगे, बट अगर जो ऑफ एक्सिस जो फोटोन्स मूव करेंगे, जो ऑफ एक्सिस मूव करेंगे, वो डिफ्रैक्शन के कारण क्या हो जाएंगे, वो स्केप कर जाएंगे कैविटी को। ओके, स्केप कर जाएंगे कैविटी को। सो यहाँ पर जो कर्व मिरर है इनके केसेस में ये चांसेस कम हो जाता है। सो the diffraction losses of in resonators formed by curved mirrors can be much smaller. ठीक है, so if the mirrors are sufficiently large in transverse dimensions, अगर ट्रांसवर्स डायमेंशन में मिरर बहुत ज़्यादा लार्ज है तो डिफ्रैक्शन लॉसेस कैन बी मेड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। यानी कि जो हम अभी तक ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये जो तुम देख रहे हो, ये मिरर्स, अभी अब मैं फ्लैट ना लेकर के अब कर्व मिरर ही ले रही हूँ। ठीक है, ये एक्सिस हो गई हमारी जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये जो हमें दिख रहा है लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन दिख रहा है। अगर मैं इसका ट्रांसवर्स पोर्शन देखूँ तो ये इस तरीके से होगा, ये मिरर है और ये जेड एक्सिस को आप अपनी तरफ ले लो तो एक्स और वाई ये, ठीक है। तो ये वाली डायमेंशन अगर हमारी जेड एक्सिस की डायमेंशन में क्या हो, अगर ये लार्ज हो, ठीक है, तो मिरर अगर ट्रांसवर्स डायमेंशन में लार्ज हो तो ये जो डिफ्रैक्शन लॉसेस होते हैं इनको हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बना सकते हैं। ओके, ये आपका जो है ये है कॉनफोकल कॉनकेव रेजोनेटर। कॉनफोकल कॉनकेव मिरर्स यहाँ पर ले रखे हैं। कॉनफोकल मतलब कि जिनके फोकस जो हैं वो कोइंसाइड करे, जिनके फोकस जो है आपस में क्या करें, कोइंसाइड करें, यानी कि इसका फोकस और इसका फोकस, दोनों का फोकस एक ही हो। तो जिनके फोकस आपस में कोइंसाइड करते हैं उनको हम कॉनफोकल मिरर्स कहते हैं। ठीक है, और कॉनकेव मिरर्स तो आपको क्या पता ही है कॉनकेव मिरर्स क्या होते हैं। सो ऐसे कॉनफोकल कॉनकेव मिरर्स के बीच में अगर हम यहाँ ऑप्टिकल ये सॉरी एक्टिव मीडियम को रख दें तो तब हमारा जो है पूरा लेजर सिस्टम बन जाता है। ओके, सो if focusing action is provided in the cavity then the diffraction losses can be much reduced. So अगर focusing action किसी कैविटी में प्रोवाइडेड हो तो डिफ्रैक्शन लॉस जो है वो कम हो सकता है। डिफ्रैक्शन लॉस में फिर से वही क्या बता रही हूँ आपको कि जो फोटॉन्स से जो डिफ्रैक्ट होकर के कैविटी को स्केप कर जा रहे थे। ठीक है, तो अब जो डिफ्रैक्शन लॉस है उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, अगर जो है उनको फोकसिंग एक्शन वहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं, यानी कि वो सब क्या हो रहे हो, एक जगह पे फोकस हो जा रहे हैं। ठीक है, तो एक जगह पे फोकस जो हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं, अगर हम यहाँ पर फ्लैट मिरर्स की जगह पे क्या ले लें, कर्व मिरर्स। और कर्व मिरर्स भी हम कैसे ले रहे हैं, जिनका की फोकस क्या हो, कोइंसाइड कर रहा हो, यानी कि दोनों का फोकस जो है वो क्या हो, एक ही हो। ठीक है, so in spherical mirror resonators, the resonator is formed by a pair of spherical mirrors or a plane mirror and a concave mirror. ये इस तरीके से भी होते हैं, या तो पेयर ऑफ स्फेरिकल मिरर्स हो, या ऐसा भी हो सकता है कि प्लेन हो एक और एक क्या हो, कॉनकेव मिरर्स हो, या एक कॉनकेव एक प्लेन, इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, तो कई टाइप के हो सकते हैं स्फेरिकल मिरर रेजोनेटर्स। ठीक, सो लेकिन जो हमने ये वाला रेजोनेटर पढ़ रहे हैं ना, स्फेरिकल मिरर रेजोनेटर में ये वाला जो रेजोनेटर पढ़ रहे हैं इसको हम कहते हैं कॉनफोकल 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 कॉनकेव कॉनफोकल कॉनकेव रेजोनेटर। कौन सा, ये वाला जिसमें कि हमारे दो स्फेरिकल कॉनकेव मिरर्स हैं। ठीक है, तो ये वाला जो मिरर है हमारा, ये वाला रेजोनेटर है जो ये नीचे पे हमने दिखा भी रखा है ये फिगर में, ये वाला ये कॉनफोकल कॉनकेव मिरर है। ओके, so this figure shows the spherical mirror resonators, and these include the symmetric confocal
रेजोनेटर, ये सिमेट्रिक कॉन्फोकल रेजोनेटर, हम इसको ये भी कहते हैं सिमेट्रिक कॉन्फोकल रेजोनेटर, विच कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ आइडेंटिकल कॉन्केव मिरर्स each having a radius of curvature r and the separation between the mirrors is r। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दोनों का r है और दोनों के सेपरेशन भी जो है वो क्या है, r है। सो दैट द फोकाई ऑफ द टू मिरर्स कोइंसाइड एट द सेंटर ऑफ द रेजोनेटर। तो ये इस तरीके से बनाया जाता है कि इनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाली वैल्यू, ठीक है, चाहे मैं यहाँ से मिला लूँ इसको सेंटर को, चाहे ये सेंटर को किसी भी पॉइंट पे मिला हुआ आप ये, एक मिनट, ये जो है ये वैल्यू भी, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है। तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनका आर है, इसका भी आर है और इसका भी आर है, और इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस यानी इनका सेपरेशन जो है वो भी कितना है, आर है। वो इसलिए बनाया जाता है, इसलिए इसको ऐसा बनाया जाता है ताकि इनका जो फोकस है वो भी क्या हो, सेम हो, यानी कि दोनों का फोकस पॉइंट सेम है, ठीक। सो डिपेंडिंग ऑन दी, ये हमने अभी पढ़ा भी था कि डिपेंडिंग ऑन द कर्वेचर्स ऑफ द मिरर एंड सेपरेशन बिटवीन द मिरर्स द रेजोनेटर इज स्टेबल और अनस्टेबल। रेजोनेटर स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कर्वेचर ऑफ द मिरर्स एंड सेपरेशन बिटवीन द मिरर्स, ठीक है। सो इन स्टेबल मिरर, ये यहाँ पर एक फिगर देख सकते हो आप, स्टेबल रेजोनेटर का और ये अनस्टेबल रेजोनेटर का। ये अनस्टेबल रेजोनेटर भी एक स्फेरिकल मिरर रेजोनेटर है, बट यहाँ पर आप देखोगे कि एक तो क्या है, एक तो कैसा मिरर है, फ्लैट मिरर है और एक कॉन्केव मिरर है, ओके, या कॉन्वेक्स मिरर है। तो ऐसा जो है, ऐसा कोई अगर आपको ये पेयर दिख रहा है तो ये अनस्टेबल रेजोनेटर का है, और ये जो है वो क्या है, स्टेबल रेजोनेटर का है, ठीक है। तो इन स्टेबल रेजोनेटर्स अ फैमिली ऑफ लाइट rays may keep bouncing back and forth between the mirrors, यानी कि जो लाइट रेज हैं, फैमिली ऑफ लाइट रेज यानी कि जो फोटॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, इन इस रेजोनेटर के अंदर क्या करेंगी, ऑसिलेट करती रहेगी, ठीक है। और ऑसिलेट करती रहेगी तो क्या करेगी, स्टिमुलेटेड एमिशन को क्रिएट करेगी, और स्टिमुलेटेड एमिशन भी बहुत ही ज़्यादा नंबर में होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो लेज़र इंटेंसिटी है, जो वो एम्पलीफिकेशन जो हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये स्टेबल के केस में है, स्टेबल रेजोनेटर के केस में, ठीक है, इनडेफिनेटली विदाउट एवर स्केपिंग फ्रॉम द कैविटी, और स्केप जो होगा फोटॉन्स का कैविटी से वो बहुत कम होगा, ठीक है। बट जो अनस्टेबल रेजोनेटर में ऐसा नहीं होता है। अनस्टेबल रेजोनेटर में क्या होता है, आप इसमें देख भी सकते हो कि जो स्केप हो रहे हैं फोटॉन्स, उनकी जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, ये और ये बाहर क्योंकि यहाँ पे डिफ्रैक्शन का प्रोसेस ज़्यादा हो सकता है, ये और ये बाहर, ओके। सो मोड्स ऑफ द स्टेबल रेजोनेटर जो हमने पढ़े थे कि ओपन, जो स्फेरिकल ओपन रेजोनेटर के बारे में हमने पढ़े थे मोड्स, ठीक है। वो मोड्स को हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के इसमें देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की रूप में देखेंगे अगर हम, तो ई एम एन, ये ई एम एन एक्स वाई इज इक्वल टू ई ज़ीरो एच एम √2x अपॉन ओमेगा नॉट एच एन इंटू √2y अपॉन ओमेगा नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो दीज आर दी हर्माइट पॉलिनोमियल्स। ये जो है इसमें एच एम एंड एच एन, ये जो पूरी वैल्यू है ये हर्माइट पॉलिनोमियल है, और ये भी हर्माइट पॉलिनोमियल है, ओके। और जो लोएस्ट ऑर्डर मोड होगा वो होगा आपका 0 0, यानी कि m इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 0। ये m और n जो मोड हैं वो क्या है, x डायरेक्शन के मोड और y डायरेक्शन के मोड, यानी कि दोनों
ट्रांसवर्स मोड जो हैं, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन का मोड और वाई डायरेक्शन के मोड को हम एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमने एम एन और क्यू लिया था जो हमने कल लास्ट लेक्चर में जो हमने डिराइव किया था, एम एन और क्यू लिया था, ठीक। तो क्यू जो था मोड वो लॉन्गिट्यूडनल मोड था, और एम और एन जो है वो क्या है, ट्रांसवर्स मोड है, ठीक है। तो ई जीरो एच एम दिस एंड एच एन दिस एंड एक्सपोनेंशियल दिस। तो लोएस्ट ऑर्डर मोड जो होगा वो होगा m इज इक्वल टू जीरो एंड n इज इक्वल टू जीरो। वैसे इसमें कई मोड्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो हायर मोड की हम बात नहीं कर रहे हैं, बट हम लोएस्ट ऑर्डर मोड की बात कर रहे हैं। तो लोएस्ट ऑर्डर मोड जो होगा इस रेजोनेटर सिस्टम का, वो गॉसियन एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है अक्रॉस इट्स वेव फ्रंट, ओके। और ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई जीरो जीरो एक्स वाई, अगर हम एम एन की जगह पे जीरो जीरो रख दें, ठीक है। तो एम एन जीरो यानी कि एच जीरो और एच जीरो, यानी एच जीरो जो होते हैं वो आपके वन होते हैं। तो ई जीरो इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, okay. So us this gives us the TEM mode, that is transverse electromagnetic modes, TEM mode, TEM mode, ठीक है। और इसकी जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अच्छा यहाँ पे जो ये है, हाँ ये फिगर है जो, ये देख लेते हैं। ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी पैटर्न को शो करता है। कैसे, अगर हम जो हमने ये जो ये लेज़र सिस्टम जो हमने स्फेरिकल रेजोनेटर वाला जो लेज़र सिस्टम है, यानी कि स्फेरिकल रेजोनेटर या स्फेरिकल कैविटी में हमने क्या रख दिया है, एक्टिव मीडियम को रख दिया है। तो अब हम उस लेज़र सिस्टम को, अगर मैं उससे एक डिवाइस बनाऊं और यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर लगा दें, तो इस तरीके से बीम यूँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम एक ऐसी स्क्रीन लगा दें, तो एग्जैक्टली हमें इस स्क्रीन पे जो बीम इंटेंसिटी बीम का पैटर्न है, ये लेज़र हो गया हमारा, ये लेज़र डिवाइस हो गई, ठीक है। और यहाँ से जो बीम्स गई, और हमें कैसे मिलेगा पैटर्न, वो मिलेगा हमें इस स्क्रीन पे, ठीक है। तो इस स्क्रीन पे जो पैटर्न मिलेगा हमें, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो मिलेगा हमें, वो किस तरीके का मिलेगा, इस स्क्रीन पे। पहले तो ये स्क्रीन हमें कैसे दिखेगी, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से, यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, ये आँख बना दी मैंने, ठीक है। यहाँ पर खड़े हैं हम इधर, यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो हमें ये स्क्रीन ऐसा मिलेगा, ठीक। और इस स्क्रीन पे हमें कई तरीके के जो है इंटेंसिटी पैटर्न दिखेंगे। ये इंटेंसिटी पैटर्न है, ये ये जो दिख रहे हैं, ठीक है। सो दिस फिगर शोज द इंटेंसिटी पैटर्न्स ऑफ सम ऑफ द लोअर ऑर्डर मोड्स ऑफ अ स्टेबल रेजोनेटर कैविटी फॉर्म्ड बाय दी स्फेरिकल मिरर्स। तो ऐसा हमने कोई लेज़र सिस्टम लिया जिसमें कि स्फेरिकल मिरर, ऐसा लेज़र सिस्टम है, स्फेरिकल रेजोनेटर लगा है उसमें, ठीक है। स्फेरिकल रेजोनेटर के अंदर हमारा क्या है, एक्टिव मीडियम है, ठीक। और फिर हमने ऑब्जर्व किया जो स्क्रीन पे, वो इंटेंसिटी किस तरीके के, इंटेंसिटी पैटर्न जो होगा वो हमें कैसा मिलेगा, वो ये है। तो ये जो सारे, ये जो जितने भी आप देख रहे हो, ये लोब्स जो दिख रहे हैं, दीज आर द TEM मोड्स, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड्स, ठीक। ये हमें, ये जो प्लेन जो हमने जो अभी मैंने ड्रॉ किया था, ये जो ऐसा एक स्क्रीन ड्रॉ किया था, स्क्रीन जो ये हमने ड्रॉ किया था, दिस स्क्रीन इज परपेंडिकुलर टू दी जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमें क्या मिलेगा, ये पैटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पैटर्न मिल रहा है हमें, वो ये सारे लोब्स इसमें मिल रहे हैं हमें इस तरीके के, ठीक है। तो इनके लिए जो है हमने यहाँ पे देख रहे हो तुम, ये नीचे पे 0 0 1 0 2 0 3 0 0 1, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो
ये पहले तो हम डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। इस एक्सिस, इस वाली डायरेक्शन में देखो ये एक्स है और इस वाली डायरेक्शन में वाई है। तो इस वाली डायरेक्शन में जो है हमारा मोड है एम, और ये जो वाई वाली डायरेक्शन में है इसमें हमारा मोड है एन। ठीक है, और टी ई एम को जो है हम कैसे शो करते हैं, टी ई एम मोड को हम शो करते हैं ये टी ई एम और सफिक्स में एम इंटू एम एन, सॉरी एम एन। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मोड होगा और दूसरा वाला जो है वो वाई एक्सिस के जो अलॉन्ग मोड होगा। ठीक है, तो एम एन अब हम पहले वाले के लिए देखते हैं। तो मोड हमें कब मिलेगा, जब क्या होगा वहां पर जीरो एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो जीरो एम्पलीट्यूड हमें जिस डायरेक्शन में मिलेगा वहां पर हमें जितने नोड, नंबर ऑफ नोड्स मिलेंगे, नंबर ऑफ नोड्स, तो जितने नंबर ऑफ नोड्स हमें जिस डायरेक्शन में मिलेंगे, यानी कि नंबर ऑफ नोड्स यानी कि जीरो एम्पलीट्यूड, जीरो एम्पलीट्यूड्स। ठीक, तो जीरो एम्पलीट्यूड्स हमें जिस डायरेक्शन में जितने मिलेंगे वो हो जाएगा उसका नंबर ऑफ मोड। ठीक, जैसे हम पहले वाले इसके लिए देखते हैं, फर्स्ट इसके लिए देखते हैं। ठीक है, इस वाली इंटेंसिटी पैटर्न के लिए देख लेते हैं। हम पहले एक्स डायरेक्शन में देख लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में हमारे पास क्या मोड है, एम। तो इसके लिए नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं ये देखो आप। इसके लिए जो इंटेंसिटी है बराबर है, कहीं भी हमें कोई ज़ीरो एम्पलीट्यूड तो दिख नहीं रहा है, कहीं कोई जो हमें डार्कनेस नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसके लिए जो एम की वैल्यू हो गई वो हो गई ज़ीरो। ठीक, ऐसे ही हम अब इस डायरेक्शन में जाते हैं। इस डायरेक्शन में देखेंगे हम वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में आप देखोगे कि क्या इसमें कोई ज़ीरो एम्पलीट्यूड है, नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर भी हमें कोई कोई नोड नहीं मिला, नोड, तो ज़ीरो। ठीक है, तो ये वाला जो मोड होगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ज़ीरो ज़ीरो मोड। ओके, अब हम इस वाले मोड में जाते हैं। ये ज़ीरो ज़ीरो मोड से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब चलो दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं ये। ठीक, इसमें हमें दो लोब्स ऐसे दिख रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में हमें क्या लिखना है, एम, यानी कि नंबर ऑफ मोड्स फॉर एम। ठीक, तो एम के लिए जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ देखेंगे आप। यहाँ से इस डायरेक्शन में जाने में हमें क्या मिल रहा है, पहले इंटेंसिटी और बीच में एक ब्लैक पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो ब्लैक पैटर्न दिखाई दे रहा है यानी कि ज़ीरो एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ज़ीरो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ, ज़ीरो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन मतलब नोड्स। ठीक है, तो ज़ीरो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन दिख रहा है हमें, कितनी बार दिखाई दे रहा है, एक बार दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ से यहाँ जाने में ये देखो इस डायरेक्शन में से हम जाते हैं तो पहले इंटेंसिटी है और फिर अचानक से हमें कुछ ब्लैक दिखाई दिया है। वो क्या है, वो क्या है, ज़ीरो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन है। और ज़ीरो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ नोड कहते हैं, नोड। ओके, सो यहाँ पर m इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 1। ठीक, m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब n की वैल्यू देखते हैं हम। n की वैल्यू यानी कि y डायरेक्शन में, यहाँ क्या y डायरेक्शन में जाते समय हमें कोई ज़ीरो एम्पलीट्यूड दिखा है, जितनी इंटेंसिटी है उतनी ही इंटेंसिटी ऊपर भी है y डायरेक्शन में जाते समय। ठीक है, समझ में आया। पहले हमें जो है पहले इंटेंसिटी दिखी थी, एक्स डायरेक्शन में हमें इंटेंसिटी लाइट दिखी और उसके बाद हमें ज़ीरो एम्पलीट्यूड दिखा, इसलिए हमने m इज इक्वल टू नोड जो होगा वहाँ पे 1 होगा। लेकिन यहाँ हम जब देख रहे हैं y डायरेक्शन में तो हम देख रहे हैं कि ज़ीरो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन हर जगह पे अगर ज़ीरो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन नहीं हो सकता, बट सारा ही क्या है, ये ब्लैक है। ठीक है, कोई लाइट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ नोड है वो कितने हैं, 0 है। सो m इज इक्वल टू तो 1 आ गया और n इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 0। सो इसके लिए जो मोड हो गया TEM मोड, वो होगा TEM 1 0 मोड। ठीक है, सिमिलरली ये वाला भी, इसमें हम एक्स डायरेक्शन में देख सकते हैं हमें दो नोड्स दिख रहे हैं।
ठीक है। जबकि वाई डायरेक्शन में हमें, वाई डायरेक्शन में बीचों बीच हम जाएंगे, ये वाला सॉरी गलत बन रहा है, ये जो बीच में है यहाँ, एक मिनट, ये ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें इंटेंसिटी दिख रही है, बीच में कोई नंबर ऑफ नोड नहीं है, ठीक है। तो n 0 है, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया 2 एंड n इज इक्वल टू क्या हो गया 0। सो दैट्स वाई TEM मोड फॉर दिस इज TEM 20। ठीक है। अब चलो एक ये वाला देख लेते हैं एग्जांपल। इसमें आप देखेंगे कि x डायरेक्शन में हम देखेंगे तो हमें नंबर ऑफ नोड मिलेगा 1, ओके। और y डायरेक्शन में नंबर ऑफ नोड 1, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा 1 1। तो TEM मोड फॉर दिस इज TEM 1 1, ठीक। ओके। तो इस तरीके से जो है हम TEM मोड को लिख सकते हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड्स को हम लिख सकते हैं, ओके। सो हायर ऑर्डर मोड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज ट्रांसवर्स डायमेंशन। नाउ द क्वालिटी फैक्टर Q factor. So what is quality factor? So we define the Q factor of the cavity by the following equation. So Q is equal to omega naught into energy stored in the mode upon energy lost per time. Energy stored in the mode upon energy lost per unit time. So omega naught is the oscillation frequency of the mode, okay. So from this we can see that smaller the loss, यानी एनर्जी लॉस जितना कम होगा, द स्लोअर वुड बी द डिके रेट कंपेयर टू द ऑसिलेटिंग पीरियड एंड लार्जर वुड बी द क्यू फैक्टर। यानी कि जितना कम लॉस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा क्यू फैक्टर होगा। क्यू फैक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी लॉस के। तो जो क्यू फैक्टर है वो किस पर डिपेंड करता है, जितनी हमारा जो है एनर्जी लॉस हो रही है कैविटी के अंदर, ओके। सो द क्वालिटी फैक्टर Q फैक्टर इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर। इट इज़ अ डायमेंशनलेस पैरामीटर, कोई डायमेंशन नहीं है इसकी, एंड कैरेक्टराइजेस द एनर्जी dissipation in a resonant system by comparing the time constant of decay of energy to the oscillation period of the system. So time constant of decay of energy, यानी कि एनर्जी डीके के लिए जो टाइम कांस्टेंट है और ऑसिलेशन पीरियड जो है सिस्टम का, उनकी कंपेयर करके ये जो है एनर्जी डिसिपेशन को कैरेक्टराइज करती है क्यू फैक्टर, ओके। नाउ द मोड सिलेक्शन टेक्निक्स। सो व्हाट आर द मोड सिलेक्शन टेक्निक्स? So a conventional laser resonators have dimensions that are large compared to the optical wavelength. जो कन्वेंशनल लेज़र रेजोनेटर होता है उसकी डायमेंशंस जो होती हैं वो ऑप्टिकल वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत लार्ज होती हैं, ओके। सो अ लार्ज नंबर ऑफ मोड्स विच फॉल विद इन द गेन बैंडविड्थ। गेन बैंडविड्थ हमें इस तरीके का मिलता है, ये फ्रीक्वेंसी और ऑप्टिकल जो गेन होता है इसके बीच में हमें एक ग्राफ मिलता है, इसको हम कहते हैं, ये हमें मिलेगा गेन बैंडविड्थ। यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ हमें मिलेगी, कई फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी हमें, ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसीज का जो एक बैंड मिल गया हमें, इसको कहते हैं गेन बैंडविड्थ, ओके। सो a large number of modes which fall within the gain bandwidth,
तो जितने कई नंबर ऑफ मोड्स जो हैं जो कि गेन बैंडविड्थ के पास मिल रहे हैं हमें, गेन बैंडविड्थ के अंदर आते हैं ऑफ द एक्टिव मीडियम and which can oscillate in the laser. So the output may consist of various transverse and longitudinal modes. So जो output होगा वो क्या हो सकता है, बहुत सारे ट्रांसवर्स और बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल मोड्स से मिलकर के बना हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें कई नंबर ऑफ मोड्स मिलते हैं जो हमारा गेन बैंडविड्थ है उसमें. Okay, so this leads to a greater divergence of the output beam as well as containing a number of oscillating frequencies, जिसकी वजह से हमें आउटपुट बीम जो है उसका बहुत ज़्यादा डाइवर्ज बीम मिलेगी और जिसमें कि कई ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसीज होंगी, ठीक है. लेकिन हमें इन इतनी सारी फ्रिक्वेंसीज में से कौन सी फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट करना है, कौन सी मोड की फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट करना है, इसलिए हम लगाते हैं मोड सिलेक्शन टेक्निक्स. ओके, सो बट व्हेन द लेज़र ऑसिलेट्स इन अ सिंगल मोड, क्योंकि यहाँ पर हमें कई नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज की मोड्स मिल रहे हैं, तो लेकिन जो लेज़र सिस्टम है वो एक सिंगल मोड के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम करता है. सो व्हेन द लेज़र ऑसिलेट्स इन अ सिंगल मोड विच इज़ द फंडामेंटल मोड, जिसको हम फंडामेंटल मोड भी कहते हैं, द पावर पर यूनिट फ्रिक्वेंसी इज मैक्सिमम फॉर दैट. सो पावर यानी कि उसकी इंटेंसिटी, इसका मतलब हमें क्या मिलेगी, बहुत मैक्सिमम मिलेगी अगर जो लेज़र है वो एक सिंगल मोड में ऑसिलेट करे, ठीक है, जिसे कि फंडामेंटल मोड भी कहते हैं. ओके, सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाईली डायरेक्शनल एंड स्पेक्ट्रली प्योर आउटपुट, various techniques have been developed both for transverse and for longitudinal mode selection in lasers. So हमें अगर हाईली डायरेक्शनल यानी कि बहुत इंटेंसिटी जिसकी हाईली डायरेक्शनल यानी कि एक सिंगल मोड की फ्रिक्वेंसी हमें मिले और हाईली इंटेंस अगर हमें बीम मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ सिलेक्शन टेक्निक्स लगानी पड़ेगी, मोड सिलेक्शन टेक्निक्स, ट्रांसवर्स के लिए भी और लॉन्गिट्यूडिनल के लिए भी. ओके, तो पहले हम देखते हैं कि ट्रांसवर्स मोड सिलेक्शन क्या है. सो व्हाट इज ट्रांसवर्स मोड सिलेक्शन? सो द लोवेस्ट ऑर्डर ट्रांसवर्स मोड the lowest order transverse mode has a Gaussian amplitude distribution across the transverse plane. क्या ये हमने यहाँ पर भी देखा था, लोवेस्ट ऑर्डर मोड जो होता है वो गॉशियन टाइप का होगा. ये एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर. ओके, and since the fundamental Gaussian mode has the narrowest transverse dimension, an aperture placed inside the resonator cavity can preferentially introduce higher losses for higher order modes. तो होता क्या है, अगर फंडामेंटल जो गॉशियन मोड है उसकी जो ट्रांसवर्स डायमेंशन होती है वो कैसी होती है, नैरोएस्ट होती है. ओके, और अगर हम क्या करें कि एक अपर्चर प्लेस कर दें इनसाइड द रेजोनेटर कैविटी, सो ये क्या करेगा, इट कैन प्रेफरेंशियली इंट्रोड्यूस हायर लॉसेस फॉर हायर ऑर्डर मोड्स. तो ये क्या करेगा, हायर ऑर्डर मोड्स के लिए हायर लॉसेस क्रिएट करेगा, ठीक है, यानी कि उस कैविटी के अंदर जो हायर ऑर्डर मोड्स हैं, ठीक है, जो TEM मोड्स की बात कर रहे हैं हम, वो लोअर ऑर्डर मोड्स तो हमने देख लिया, जैसे 0 हो गए, सबसे लोएस्ट ऑर्डर मोड है, ठीक है. और अभी हमने देखा कि जितने ज़्यादा मोड्स मिलेंगे हमें, कई मोड्स मिलेंगे अगर हमें, तो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज मिलेंगी और हमें जो लेज़र बीम है उसके लिए हमें एक सिंगल मोड की फ्रिक्वेंसी चाहिए, ठीक है. तो सिंगल मोड की फ्रिक्वेंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ मोड्स हैं उनको हटाना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ हायर मोड्स को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अगर उनसे जो अगर हम क्या कर दें, कैविटी के अंदर एक क्या लगा लें, एक अपर्चर को प्लेस कर लें, अपर्चर रख दें कैविटी के अंदर, तो हम जो हायर
ऑर्डर मोड्स हैं उनको हटा सकते हैं, ठीक है। So thus if a circular aperture is introduced into the laser cavity such that the loss suffered by all higher modes is greater than the gain while the loss suffered by the fundamental mode is lower than its gain, यानी कि अगर हम क्या करें, एक ऐसा सर्कुलर अपर्चर को इंट्रोड्यूस कर दें लेज़र कैविटी के अंदर, इस तरीके से करें सच दैट कि जो ऑल हायर मोड्स जो हैं उनका लॉस सफर्ड बाय द हायर ऑल हायर ऑर्डर मोड्स इज ग्रेटर देन द गेन लॉस। अगर हम इसको एल से इसको रिप्रेजेंट करें तो ये जो लॉस है जो कि हायर ऑर्डर मोड्स, मैं हायर ऑर्डर मोड्स को एच से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, ओके। इनसे मिलने वाला जो लॉस है वो अगर क्या हो, ग्रेटर हो लॉस सफर्ड बाय द फंडामेंटल मोड loss suffered by the fundamental mode, that is LF, okay. Then the laser would oscillate only in the fundamental mode। तो जो लेज़र होगा वो किस मोड में ऑसिलेट करेगा, केवल फंडामेंटल मोड में, ठीक। सो इस लाइन को एक बार फिर से देख लो कि the loss suffered by all higher order modes is greater than the gain while the loss suffered by the fundamental mode is lower than its gain, यानी कि ये जो लॉस हो रहा है हायर मोड के कारण ये इनके गेन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो लॉस जो हो रहा है फंडामेंटल मोड के द्वारा वो इसके लोअर, उसकी जो गेन है उससे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये तो गेन से ज़्यादा होगा ये वाला लॉस, और ये वाला जो लॉस है वो गेन से कम होगा। तो इस वजह से जो लेज़र होगा वो क्या करेगा, फंडामेंटल मोड में ऑसिलेट करेगा, ठीक है। सो द स्पेसिफिक हायर ऑर्डर ट्रांसवर्स मोड्स कैन ऑल्सो बी सेलेक्टेड एट अ टाइम बाय चूजिंग कॉम्प्लेक्स अपर्चर्स। तो हमें जितने ये स्पेसिफिक हायर ऑर्डर ट्रांसफर मोड्स हैं उनको अगर हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, कई कॉम्प्लेक्स अपर्चर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कैविटी में, विच इंट्रोड्यूस द हाई लॉस फॉर ऑल मोड्स एक्सेप्ट द रिक्वायर्ड मोड, जिसके कारण क्या होगा कि जो भी मोड्स हमें नहीं चाहिए वो उनको क्या कर देगा, वो हटा देगा और हमें केवल एक रिक्वायर्ड मोड मिल जाएगा, ओके। नाउ दी लॉन्गिट्यूडनल मोड सिलेक्शन। तो ये जो ट्रांसवर्स मोड सिलेक्शन था इसमें क्या होना चाहिए, इसकी ये जो मेन है इसका ये इसको जो है हाईलाइट कर लो कि लॉस सफर्ड बाय ऑल हायर मोड्स इज ग्रेटर देन द गेन, ठीक है। इसमें जो लॉस होगा हायर ऑर्डर मोड्स के द्वारा जो लॉस होगा वो इसके गेन से ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके द्वारा जो गेन हुआ हायर ऑर्डर मोड्स के द्वारा जो गेन हुआ इनसे ज़्यादा जो है इनके द्वारा जो लॉस हुआ है वो ज़्यादा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो फंडामेंटल मोड है इसके द्वारा जो लॉस हुआ है वो इसके द्वारा गेन से कम है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी को प्राप्त कर सकते हैं लेज़र के लिए, ओके। अब लॉन्गिट्यूडनल मोड सिलेक्शन। So what is longitudinal mode selection? So how we do this longitudinal mode selection, okay. So the various longitudinal mode corresponding to a transverse mode are approximately separated by frequency interval of c upon 2n naught d। ये हमने देखा था डेल्टा न्यू इज इक्वल टू c upon 2n naught d, ओके। क्यू इंटू भी था बट क्यू को अगर हम 1 मान लेते हैं तो c अपॉन दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल मोड कॉरस्पॉन्डिंग टू अ ट्रांसवर्स मोड, ओके। सो जो सेपरेशन बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल मोड है, एक ट्रांसवर्स मोड के लिए जो हमें कई लॉन्गिट्यूडनल मोड मिल रहे हैं उनका जो सेपरेशन है ये
ये अगर हम इस फिगर में देखते हैं तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये और ये डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है, c/2n0 इंटू डी। डी जो है वो क्या है, कैविटी की लेंथ है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल फॉर अ 50 centimeter long laser cavity with n not equals to 1। अगर कोई 50 सेंटीमीटर लॉन्ग लेज़र कैविटी है जिसके लिए कि एन नॉट जो है वो 1 है, देन दी लॉन्गिट्यूडनल मोड स्पेसिंग इज 300 मेगाहर्ट्ज। ओके, कैसे, d इज इक्वल टू आपके पास कितना है 50 सेंटीमीटर, ओके, और एन नॉट कितना है आपके पास 1 है, ठीक है। तो आप जो है लॉन्गिट्यूडनल मोड स्पेसिंग निकाल सकते हो, कैसे, ये डेल्टा न्यू जो है लॉन्गिट्यूडनल मोड स्पेसिंग इज c/2n0 इंटू डी, ठीक है। तो डेल्टा न्यू इस केस में हो जाएगा c यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 इंटू एन नॉट की वैल्यू 1 है इंटू डी की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे -2 10⁻⁻² की मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर में। ओके, सो ये कितना आ गया आपका, ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 ये हो जाएगा 10 ऊपर, इसको हटा लो, और ये हो जाएगा 3 × 10⁻10 डिवाइड बाई 100। ओके, and this will give you 300 अपॉन 100, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻10 अपॉन 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 3 × 10⁴ 4 × 10⁻6 अपॉन 100। तो इस 100 की 2 पावर से ये कैंसिल हो गया, सो कितना आ गया 3 × 10⁻2 यानी कि 300। तो 300 और 10⁻6 यानी कि 300 हर्ट्स आ रहा था, तो 10⁻6 है तो हम लिख सकते हैं मेगा हर्ट्स। सो स्पेसिंग बिटवीन दी लॉन्गिट्यूडनल मोड्स आर 300, ठीक है। सो 300 मेगा हर्ट्स की जो लॉन्गिट्यूडनल मोड स्पेसिंग है वो कितनी है 300 मेगा हर्ट्स, ठीक है। सो इफ द गेन बैंडविड्थ ऑफ द लेज़र इज 1500 मेगा हर्ट्स, अगर जो है गेन बैंडविड्थ, जैसे कि मैंने बताया गेन बैंडविड्थ, ये इसको हम ये कहते हैं गेन बैंडविड्थ, ये होगा फ्रीक्वेंसी के साथ हमने ऑप्टिकल गेन को प्लॉट किया है, ठीक है। सो गेन बैंडविड्थ अगर जो है 1500 मेगा हर्ट्स का होगा, तो इसका मतलब कि प्रत्येक जो लॉन्गिट्यूडनल मोड की सेपरेशन है वो कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर, सॉरी हमें कैसे मिलेगा ये then in the case even if the laser is oscillating in a single transverse mode it will still oscillate in about 5 longitudinal modes, ठीक है। तो अगर हमारे पास गेन बैंडविड्थ है इतनी गेन बैंडविड्थ है तो और स्पेसिंग जो है वो इतना है, यानी कि प्रत्येक जो लॉन्गिट्यूडनल मोड है वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे है 300, मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी जो डिस्टेंस है या फ्रिक्वेंसी स्पेस जो है उनके बीच में कितना है, फ्रिक्वेंसी स्पेसिंग 300 मेगाहर्ट्ज़। तो 300 मेगाहर्ट्ज़ है और हमें हमारे पास गेन बैंडविड्थ कितना है 1500 मेगाहर्ट्ज़। तो हमें जो टोटल नंबर ऑफ जो मोड्स होंगे लॉन्गिट्यूडनल मोड्स होंगे वो कितने होंगे, एक ट्रांसवर्स मोड के लिए कितने होंगे 5 होंगे, क्योंकि 1500 मेगाहर्ट्ज़ की तो क्या है गेन बैंडविड्थ और जो स्पेसिंग है वो कितनी है 300 मेगाहर्ट्ज़ की, ठीक है। तो
5 जो है हमें क्या मिलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मोड्स मिलेंगे. सो दिस. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो इस वाले फिगर का तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पे देख सकते हो ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये क्या है, नंबर ऑफ मोड्स, लॉन्गिट्यूडनल मोड्स. ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्स मोड के लिए है. ठीक है, सो जो इनकी जो स्पेसिंग बोल रही हूँ मैं, जो वो 300 मेगाहर्ट्ज बोल रहे हैं ना, वो है ये फ्रीक्वेंसी, ये स्पेसिंग, ये वाली. ठीक है, ये स्पेसिंग, ये स्पेसिंग, ये स्पेसिंग, ये स्पेसिंग, ये स्पेसिंग. तो इतनी स्पेसिंग, इतनी स्पेस से जो है ये सेपरेटेड है. ओके, ये मोड्स, तो कितने मोड्स हैं, ये 5 मोड्स हैं. ठीक, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि किस तरीके ये जो लॉन्गिट्यूडनल मोड्स हैं वो किस तरीके से सेपरेटेड हैं. ओके, और कितने नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मोड्स होंगे. सो द आउटपुट would consist of 5 different frequencies separated by 300 megahertz, would result in a much reduced coherence length of the laser. तो अब क्योंकि हमने अभी देखा, हम अभी पढ़ भी रहे थे कि हमें मोड सिलेक्शन टेक्निक्स क्यों लगानी है, क्योंकि हमें एक सिंगल बीम की सिंगल फ्रिक्वेंसी मोड जो है अगर हमें चाहिए, सिंगल फ्रिक्वेंसी का मोड चाहिए हमें. ठीक है, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ मोड्स पे ज़्यादा जो है फ्रिक्वेंसीज की हमें मोड्स मिल रहे हैं, ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल मोड्स मिल रहे हैं एक ट्रांसवर्स मोड के लिए, तो हमारी जो ये होगी, जो लेज़र बीम होगी वो कोहेरेंस नहीं होगी. ठीक है, तो इसकी कोहेरेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी. ओके, तो हमें अगर शार्प कोहेरेंट चाहिए अगर लेज़र बीम, तो तब हमें जो है इसको रिड्यूस करना पड़ेगा. जो नंबर ऑफ ये डिफरेंट 5 फ्रिक्वेंसीज आ रखी हैं, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा. यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मोड सिलेक्शन टेक्निक लगानी पड़ेगी. ठीक है, सो इसमें देखते हैं हम इस वाले डायग्राम में तो कैसे वो सिलेक्शन टेक्निक हम लगा सकते हैं. सो देखो इस फिगर में, देखो फर्स्ट फिगर में देखो, द लॉन्गिट्यूडनल मोड स्पेसिंग ऑफ अ रेजोनेटर ऑफ लेंथ d. एक रेजोनेटर है जिसकी लेंथ d है, उसके लिए जो हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडनल मोड जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, c/2d, एंड नॉट हमने यहाँ पे 1 मान लिया. ठीक है, दिस different modes having gain more than loss. ये जो ये मोड्स दिखा रखे हैं इसमें, डिफरेंट जो मोड्स हैं, इनके लिए जो गेन है, इनके द्वारा जो दिया गया, जो इनसे जो हमें मिला गेन है, वो इनके द्वारा जो किया गया लॉस है उससे ज़्यादा है. ठीक है, ओके, सो the gain for these modes is greater than the loss due to these modes. Okay, so these type of modes for which the gain is greater than loss will oscillate simultaneously. ये तो simultaneously oscillate करेंगे, ये जिनके लिए कि gain जो है वो greater than है loss. Okay, एंड इफ द रेजोनेटर लेंथ इज रिड्यूस्ड, अगर हम क्या कर दें, d को क्या कर दें, कम कर दें. ठीक है, तो d को अगर हम डेल्टा न्यू इज इक्वल टू c/2d लिख रही हूँ मैं, एंड नॉट नहीं लिख रही हूँ, d को कम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. अगर हम d को क्या कर दें, कम कर दें, तो अगर हम कैविटी की लेंथ को रिड्यूस कर दें तो क्या होगा, स्पेसिंग जो हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी. और स्पेसिंग जब ज़्यादा हो जाएगी तो हमें ये वाले जो बैंड विड्थ है जिसमें कि हमें मिल रहे थे मोड्स फॉर विच द गेन इज ग्रेटर देन लॉस, इस पर्टिकुलर बैंड विड्थ के लिए हमें नंबर ऑफ मोड्स की संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी, रिड्यूस्ड. ओके, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, एक ही मोड, सिंगल मोड. ओके, एंड दिस इज द मोड एट द लाइन सेंटर.
ठीक है. So then it would result in single longitudinal mode oscillation of the laser. तो इसका मतलब क्या है कि हमें अगर सिंगल लॉन्गिट्यूडनल मोड चाहिए, जो हमारे पास कई नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मोड्स आ रहे थे कॉरस्पॉन्डिंग टू वन ट्रांसवर्स मोड, हमारे पास कई क्या आ रहे थे लॉन्गिट्यूडनल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मोड्स मिल रहे थे. तो उनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द रेजोनेटर. अगर हम रेजोनेटर की लेंथ डी को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, ये तो क्या हो जाएगी, जो स्पेसिंग थी ना, जो डेल्टा न्यू, जो स्पेसिंग थी फ्रीक्वेंसी की, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी ज़्यादा हो जाएगी. वो डेल्टा न्यू जो स्पेसिंग है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज डेल्टा न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी. डी इज द लेंथ ऑफ द कैविटी. तो अगर हम लेंथ ऑफ द कैविटी को क्या कर दें डिक्रीज कर दें, तो हमारे पास जो स्पेसिंग है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और स्पेसिंग जब इंक्रीज हो जाएगी तो जो नंबर ऑफ मोड्स हैं इस बैंड विड्थ में आने वाली, किस बैंड विड्थ में, जहाँ पर की मोड्स, जहाँ पर की गेन जो है वो ग्रेटर देन है लॉस. ठीक है. तो तब हमें जो नंबर ऑफ इस बैंड विड्थ में मिलने वाली जो नंबर ऑफ मोड्स हैं वो हमें क्या मिलेगा, एक सिंगल लाइन सेंटर की का मिलेगा. ठीक है. तो इन दिस वे द नंबर ऑफ मोड्स एंड नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मोड्स कैन बी रिड्यूस्ड. तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मोड्स अगर हम रिड्यूस कर दें तो लेज़र बीम जो है हमें वेरी हाई कोहेरेंस मिलेगी. ठीक है. यानी कि उसकी जो कोहेरेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी. ठीक है. सो सिंगल लॉन्गिट्यूडनल मोड ऑसिलेशन कैन बी ऑब्टेन्ड by reducing the cavity length to a value such that C upon 2n naught D is greater than B nu G. ठीक है. तो C upon 2n naught D क्या है, डेल्टा न्यू अगर क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए ये न्यू जी से, डेल्टा न्यू जो है ये वाली वैल्यू इस ग्रेटर देन हो जाए अगर न्यू जी से, यानी कि गेन बैंडविड्थ से, अगर जो गेन बैंडविड्थ है वो क्या है हमारा, ये वाला. ठीक है. इस गेन बैंडविड्थ से अगर जो हमारा स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो जाए इस गेन बैंडविड्थ से, दैट इज़ न्यू जी, तो हम लॉन्गिट्यूडनल जो मोड ऑसिलेशन है दिस कैन बी ऑब्टेन्ड, ओके, बाय रिड्यूसिंग द कैविटी लेंथ. तो अगर हम कैविटी लेंथ को रिड्यूस कर दें तो लॉन्गिट्यूडनल मोड ऑसिलेशन जो है हमें मिल सकते हैं. किस वे में, अगर हम क्या कर दें, डेल्टा न्यू जो है अगर वो क्या कर दें, हम ग्रेटर देन कर दें न्यू जी. ठीक. तो ये था मोड सिलेक्शन टेक्निक्स और स्फेरिकल मिरर रेजोनेटर्स. Okay, thank you.